اہم خبر شامل کریں گے۔ پہلگام فالس فلیگ بھارتی خفیہ ایجنسی را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ گئیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب ہو گیا۔ یہ دستاویزات سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئیں۔ دستاویزات پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت ہیں۔ دستاویزات میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا۔ دستاویزات میں ہدایت دی گئی کہ پاکستان مخالف بیانیے کو میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بتانا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ISI پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے، جبکہ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ دستاویزات اور ان تضادات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی کوئی ہدایات دیتا ہے۔ دستاویزات کا یوں سوشل میڈیا پر آنا را کے اندر ہندوتوا مخالف سوچ کا بھی شاخسانہ لگتا ہے۔ بھارتی حکومت دستاویزات کے سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لیک ہونے والی دستاویزات میں ہوش شبہ انکشافات سامنے آ گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ دستاویزات سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئیں۔ دستاویزات پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، احمد منصور نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ دیکھیں، جو ذرائع انکشاف کر رہے ہیں، یہ دستاویزات جو لیک ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی ہے۔ اس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار وہ بے نقاب ہوا ہے۔ بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت اس سے ملا ہے، اور اس دستاویزات میں جو دی گئی ہدایات ہیں اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد وہ فالس فلیگ کا باعث بنا ہے۔ پاکستان مخالف بیانیہ کو میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے، یہ دستاویز میں ہدایت دی گئی ہے۔ ISI پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے، لیکن میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ دستاویز اور ان تضادات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی کوئی ہدایات دیتا ہے۔ دستاویز کا اس طرح سوشل میڈیا پر آنا را کے اندر ہندوتوا مخالف سوچ کا بھی شاخسانہ لگتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جو بھارتی حکومت ہے وہ ان دستاویز کے سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات بھی کر رہی ہے، کیونکہ اس سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس میں سائیوپس اور بیانیہ کنٹرول میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ واقعے کا بیانیہ یوں مرتب ہو کہ یہ ریاست سمیت غیر مسلموں پر حملہ بن کر ابھرے۔ اس واقعے کو ابھارنے کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے۔ ان دستاویز میں کہا گیا ہے میڈیا کے اثاثوں کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے اس واقعے کی جگہ پر متحرک کیا جائے گا۔ ضلع اننت ناگ میں ایک کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس دستاویز میں یہ بتایا گیا سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے خاص جگہوں پر اپنے فیلڈ آپریٹر تعینات کیے جائیں گے۔ حملے کے 2 سے 4 گھنٹے کے اندر AI سسٹم کے تحت گواہوں کے بیانات لیے جائیں گے۔ دھندلی ویڈیوز کی مدد سے واقعے کی تصویریں دوبارہ بنائی جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں ان دستاویز میں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ مرکزی ہیش ٹیگ کی بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے غلط معلومات کی مہم چلائی جائے گی۔ ISI پر الزام ڈالنے کے لیے ٹرینڈ کو بغیر کنٹرول کے پھیلایا جائے گا اور بحث کا رخ کشمیر سے ہٹا کر عالمی اسلامی سازشوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ شمالی کمان حملے کی جگہ کے قریب سے ملنے والی خط و کتابت کو ISI سے منسوخ کرے گی۔ یہ شمالی کمان کے حوالے سے بات ہے، اور شمالی کمان پرازک انداز میں ISI کی مبینہ دستاویزات لیک کرے گی۔ آپریشن کو امریکی نائب صدر JD وینس کی سفارتی موجودگی کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، اور عالمی برادری سے زیادہ دہشت گردی پر یکجہتی کی اپیل بھی کی جائے گی۔ مکمل دستاویزات ہیں اس منصوبے کے حوالے سے، ان میں متبادل منصوبے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ شوپیان میں متبادل نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ لیک ہونے کی صورت میں متبادل پلان کے طور پر یہ کام کرے گا۔ LOC پر پاکستان کی تیز پیش قدمی بھارت کے کنٹرول کو چیلنج کر سکتی ہے، تو 1.3 کلومیٹر حد کی خلاف ورزی اقوام متحدہ یا چین کی ثالثی کو دعوت دے سکتی ہے۔ LOC پر پاکستان کی تیز پیش قدمی بھارت کے کنٹرول کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی ان دستاویزات میں مزید یہ کہا گیا ہے
कि जो भारतीय पेशकदमी को 1.2 किलोमीटर तक महदूद रखने की हिदायत जारी की गई है और गैर जानबदार ममालिक की जानिब से मुमकिन मुज़ाहमत या दबाव का सामना हो सकता है। कोड इंडो टैकॉम के जरिए मुतबादिल लाइन टैंगो इको को चालू रखा जाएगा। इन दस्तावेजात में ये भी कहा गया है और बलूचिस्तान में DLA और DNA की सरगर्मियों और रद्द-ए-अमल में फर्क पैदा होने का खदशा है। कश्मीर हमले के बाद 3 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए टाइम विंडोज मुकर्रर की जाएंगी। ये मैं तमाम जो इंफॉर्मेशन अभी पढ़ रहा हूँ ये इस राह दस्तावेज से ली गई है। इनमें ये भी कहा गया है कि DLA सेल C-48 पर सुई और कोयटा में सरगर्मियां शुरू करेंगे। हिंदू इलाकों को सिर्फ मखसूस गैर रियासती प्लेटफॉर्म तक महदूद रखने की हिदायत जारी की जाती है। अनंतनाग और कांद्रा बिल को कॉरिडोर में सादा लिबास में वेटरन स्क्वाड तैनात किया जाएगा। चीन की इक़्तिसादी अहदाफ जैसे सीपैक और ग्वादर पर इब्तदाई अमल दरामद के दौरान नजर रखी जाएगी। हक़ फैसला रॉ के निकात पर मबनी होगा। अगर 21 अप्रैल 2025 तक कोई मसला नहीं आता तो हतमी कमांड एनालॉग चैनल से फराहम की जाएगी। यानी जो 22 अप्रैल को वाक़या हुआ है इसकी हतमी कमांड एनालॉग चैनल से फराहम की गई होगी। इस दस्तावेज के मुताबिक ये भी स्टैब्लिश हो रहा है और ऑपरेशन के बाद तमाम फील्ड ऑपरेटिव के लिए ब्लैक स्टेटस को कबूल किया जाएगा। दस्तावेज में जो ये भी हिदायत शामिल है। दफाई माहिरीन इस पर अब बड़े शशतर हैं और इससे उनकी जो राय है वो सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये दस्तावेज साबित करती है कि पहलगाम भी पिछले हमलों की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जी अच्छा अहमद, इन दस्तावेजात में एक अहम चीज़ जो सीपैक और गवादर के हवाले से है उस मुतालिक भी लिखा गया है कि तमाम तर नज़र रखी जाएगी इन दो जो पाकिस्तान में चीन अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन मंसूबों पर भी नज़र रखी जाएगी। तो माजी में भी हमने ये देखा है कि भारत की नज़र हमेशा इन मंसूबों की तरफ है और भारत हमेशा ये चाहता है कि चीन इस तरह के मंसूबे पाकिस्तान में शुरू ना करे ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर ना गामजन हो सके। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का तो ये जो नुक्ता नजर है ये बहुत अरसे से है, लेकिन इन दस्तावेज से वो पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है, जो पाकिस्तान के खदशात कह लें, इल्जामात, वो साबित होते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि रॉ की बलूचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान दे चुका है। जो कुलभूषण यादव वो जिंदा जावेद एक सबूत के तौर पे पाकिस्तान के पास है जो अपने मुंह से इकरार कर रहा है। उसके साथ साथ अभी जो हाल ही में DGISCR ने जो पूरी एक निशानदेही की कि एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहा है और उसके जो हैंडल्स हैं वो इंडियन आर्मी के जो सर्विंग अफसरान है, पूरी जो उसकी तफसीलात जारी हुई हैं। गुज़श्ता रोज भी ये सारी बातें जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की और DGISCR की, उसमें ये तमाम बातें की गई हैं कि उसमें जो पाकिस्तान में लाहौर से ग्वादर तक जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी में और हर जानिब न सिर्फ बलूचिस्तान की जो तंजीमें हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, इसके साथ साथ जो TTP है या खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स जो इस नेटवर्क हैं, जैसे अभी हाल ही में ये पकड़ा गया है जेहलम से बंदा और उसके जो वो दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में, उसको ड्रोन के जरिए जो IDs फराहम करने का ये भी इंकशाफ हुआ है और ये सारे सबूत तो पाकिस्तान देता है। ये जो रॉ दस्तावेज है ये उनसे मोहर सख्त कर रही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके जो जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो उसका पूरा फोकस ही पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी है और उसके साथ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, उसको दबाव बढ़ाने के लिए खुद अपने इंडिया में मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फिर उससे अपने मकासद जो सियासी मकासद मोदी लेके हैं वो हासिल करने हैं, पाकिस्तान पे दबाव डालना है। और अभी हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सरहदों पे कशीदगी है और किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है और पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। तो ये जो खित्ते के अहमद मंसूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये तो पहले से वाज़ेह था कि इंडिया की जानिब से फॉल्स फ्लैग
फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के ऑपरेशन इंडिया की जानिब से होते रहे हैं। जब जब इंडिया के इलेक्शन आए हैं मोदी की जानिब से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये जो दस्तावेजात सामने आई हैं इससे साफ वाज़ेह हो चुका है कि किस तरह तमाम तर ऑपरेशन को पहले बनाया गया, मंसूबा उसका बनाया गया और फिर उसको लीक होने से बचाने के लिए और तमाम तर मलबा पाकिस्तान आर्मी और ISI पर डालने का तमाम मंसूबा तैयार किया गया था। कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, इसमें जो रिसर्च एनालिसिस है और IB है, इसमें कुछ कमियां होती हैं, उसको कहते हैं ड्रामा कमियां। दिस इज अ प्रॉपर इनकी फॉर्मेशन यूनिट्स हैं जिनका यही काम है बेसिकली फॉल्स फ्लैग को सच साबित करना। और दूसरा, आपको पता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। अभी जब से ये हुआ है, राइट फ्रॉम द वे FIR काटी गई विद इन लेट्स से 10 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट, और उससे पहले जो है ना पुलिस पहुंची ना जो है वो उनकी मिलिट्री या BSF, तो चीजें बड़ी आहिस्ता से वाज़ेह हो रही थी। दैट्स वाई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने ज्यादा कान नहीं धरे। अब ये आई थिंक डॉक्यूमेंट जो है बड़ा आई वुड से आई ओपनर है फॉर पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि विद इन जो है आई डोंट नो कैसे चीजें लीक हुई हैं, बिकॉज आई एम श्योर ये टॉप सीक्रेट कार्रवाई होगी। उसका अप्रूवल जो है ऊपर तक जाता है, बेसिकली ये मोदी साहब से फ्लो करता है दोवल, और फिर ये ड्रामा पार्टियां एक्शन में आती हैं या जो लेट्स से इनकी IB वाले लोग हैं। तो अभी चीजें बड़ी क्लियर हैं कि ये प्रॉपर फॉल्स फ्लैग था, उसके ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर थे, इससे क्या अचीव करना है, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कराना है, कश्मीरियों को सप्रेस करना है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के फिर आगे उन्होंने नैरेटिव बिल्डअप करा। मेरे ख्याल में ये आई थिंक जो बात हो रही थी पहले भी DICR ने कहा कि विद इन तो हमारे पास प्रूफ है, अभी ये एक और सबूत आ गया, इट शुड बी टेकन टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बिकॉज आप इस तरह के होचे हथकंडों से पूरे साउथ एशिया का अमन जो है दाव पे लगा रहे हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि अभी जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चियों के साथ, जो बाकी ऑक्युपाइड कश्मीर की बच्चियां जाती हैं पढ़ने, उनको लिटरली लोग जुदकोप कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, और फिर सिख जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको पंजाब हरियाणा में हमने देखा है इस तरीके से मुसलमानों का नाटका और बंद कर दिया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये अपनी भोंडी और गंदी सियासत प्लेआउट से ये पूरे खत्ते का अमन जो है वो खतरे पे लगाना चाहते हैं या स्टेक पे लगाना चाहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, आई थिंक अभी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि जो बेसिकली प्रिपरेशन है, चाहे उसमें पाकिस्तानी अवाम हो, उनका मोराल बहुत बुलंद है। भारत और मूडी एक मीम बन चुका है दुनिया में, और लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज दे नो इट कि ये झूठ है। फिर अवाम जो है वो कह रही है हम फौज से आगे आके लड़ेंगे। वी हैव सीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आल्सो, मौलाना साहब ने कहा, बाकी तमाम पार्टियां यूनाइटेड हैं। और फिर आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी की प्रिपरेशन है। अगर आप देखें ऑल द वे सचिन से लेके सरक्रीक तक और चित्राल से ग्वादर तक, मतलब हाई अलर्ट है। अभी कल इनके 4 रफेल जो थे उनको वापस जाना पड़ा बिकॉज उनको पता है कैपेबिलिटी क्या है। नेवी हाईली अलर्ट है। नेवल ड्रोन कैपेबिलिटी अल्लाह की फजल से 1500 से 2000 मील तक मार कर सकती है, तो मेरे ख्याल में वहाँ चिड़िया भी पानी मारे। फिर आर्मी का आपने देख लिया, डिप्लॉयमेंट्स हैं, उसमें क्वाडकॉप्टर गिर रही हैं। फिर भारत की फ्रेटरसाइड शुरू हो गई है, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी एक उनकी यूनिट है 185 BSF ने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के ऊपर फायर कर दिया रात को कंफ्यूजन में। LOC पे 5 बंदे मारे, जिसमें मेजर अवतार सिंह भी मारा गया। सिखों में बड़ी रिजाइनमेंट है। फिर ख्याल है पंजाब में, इंडियन पंजाब को भी सिख खुद इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब कह रहे। ये भी दिन देखा था मोदी ने कि एक सटल सूबा उनका, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं और वहाँ से गाने बन रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कंडेम नहीं कर सकते। और उस खातून को उसने गिरफ्तार किया गया, एक सिख लड़की है। और इंडियन पंजाब में फर्स्ट टाइम वॉल चॉकिंग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और पटियाला कैंट में एक स्कूल की दीवार पे। वकार साहब, तो ये जो आप इंडियन लोगों की बात कर रहे हैं, इसी मुतालिक मैं बात करना चाहूंगा कि मोदी हमेशा से इस तरह के हथकंडे अपनाता रहा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं। अब क्या वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो असलियत से वाकिफ हो चुके हैं जिस तरह के ये हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन से पहले टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए? क्या अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि गाना भी रिलीज हुआ है वहाँ पे और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी हमने देखा, तो अब लोग असलियत से वाकिफ हो चुके हैं? ये लोगों की एक मेजॉरिटी है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेमोग्राफिकली आप देखें तो कहा भारत ने माइनॉरिटीज को सप्रेस किया। एक्चुअली अदर वे राउंड है। 77% जो मेजॉरिटी है, जो बेसिकली या तो शूद्रा है 40 करोड़ है, मुसलमान है 30 करोड़ है, दलित है 20 करोड़, फिर इस तरह सिख ईसाई है, और आदिवासी है नॉर्थ ईस्ट का, आपको पता है वहाँ की। तो ये सिर्फ 3 जो जातियां हैं इनकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कैलकुलेट करिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 23% है। अभी 23% ने क्या किया हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा है। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, 60% जज हैं ब्राह्मण है।
اسی طریقے سے ڈسپروپورشنٹلی، حالانکہ وہ 3% ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کارپوریٹ انڈیا تھا، لائک اڈانی امبانی جو گجراتی بزنس مین، انہوں نے پھر موڈی کو بینک رول کیا، اس کو آگے لے کے آئے اور سعودی عرب ان کو ڈیویڈنڈ بھی مل رہا ہے. تو اس میں ابھی سعودی عرب 77% آبادی کو آپ سپریس نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنی بات کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گودی میڈیا اس وقت جو ہے بیکاز آف امبانی اڈانیز اور انہوں نے کنٹرول کر لی ایون لبرل میڈیا لائک این ڈی ٹی وی وغیرہ. تو وہ ایک یہ ہے کہ آواز نکلتی ذرا مشکل سے ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی آپ کروا لیں ریفرینڈم، بھارت میں 77% لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار حسن خان صاحب آپ کے وقت کا. احمد منصور ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے. احمد آپ کا بھی شکریہ.